नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर किया श्री विजयपुरम। मुख्य सचिव ने भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का किया अनावरण। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का हुआ निपटान। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि श्री विजयपुरम नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वीरों को श्रद्धांजलि देता है और औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति का प्रतीक भी है, या औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने और अपनी विरासत का जश्न मनाने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अंडमान लोक निर्माण विभाग ने अपने इंजीनियर्स के लिए 16 से 20 सितंबर तक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट डिजाइन विषय पर 5 दिवसीय इस प्रशिक्षण का आज शुभारंभ हुआ। साथ ही मुख्य अभियंता के कार्यालय में भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम भी रखा गया। इस अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा अंडमान लोक निर्माण विभाग की सचिव पूर्वा गर्ग, मुख्य अभियंता टी के प्रजीत रेख सहित अभियंता उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने बटन दबाकर एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद सचिव पूर्वा गर्ग ने अंडमान लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की झांकी का अनावरण किया। इसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर अपने स्वागत संबोधन में मुख्य अभियंता ने बारिश में यहां की सड़क की स्थिति के बारे में बताते हुए प्रशिक्षण के आयोजन की जानकारी दी। Regarding rain, 8 months rain, 4 months of working season, and the items which we are using basically in Port Blair and Andaman Nicobar Islands, sir, regarding the road items, sir, which we used to discuss in detail on Mondays, sir. And the basic new technologies which are in the field now, sir, which we have not yet adopted here. मुख्य सचिव ने अपने उद्घाटन संबोधन में अभियंताओं को संबोधित करते हुए नगर की कुछ सड़कों के बार बार खराब होने का जिक्र किया और कहा कि इसके समाधान के लिए हमें बैठकर गंभीर चिंतन करना है। उन्होंने कहा कि सीमेंट कंक्रीट रोड ही इसका विकल्प है। I see that same road which has been constructed by Army is absolutely smooth, functioning very well. Even if the traffic is slightly high, but the roads that we construct deteriorate very fast. There has to be some answer to the question. There could be a number of answers, but then we need to seriously sit and think that why is it happening? Is it that in a situation where the traffic is higher as compared to some other road where it is in good condition, we need to adopt some other technology or other method? And that's why we decided that we'll have cement concrete roads now. I know whether it's good or not. I have very little knowledge, but my hunch says that probably cement concrete roads are the answer for this place, which witnesses 3000 mm of rainfall per year. I don't know, you all are experts, you will come to a conclusion which I'll definitely agree with you. I have no reason to dispute. And so we all need to stand up, we all need to think, every individual need to think that we all are working for a sense of pride. And once that goes out of our work, then nothing will come out, nothing nice will come out. So equipping yourself with the technical knowledge and also reigniting that sense of belongingness, that is extremely important for the department as a whole
to show that we are capable of doing something which is historical. कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को प्रमाण पत्रों से पुरस्कृत किया। समारोह के अंत में विभाग के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। We will be interacting with the CRRI, the best in the field of the construction in the country, to change the construction methodology, to change our understanding of the construction of the road. And we are here, and we wish that we will have a very good interactive session. We have a mix of the young and experienced engineers here who has worked in the field, have the good academic knowledges, and we hope that they will have a very good interactions here. अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने बीते शनिवार को श्री विजयपुरम के जिला न्यायालय भवन, एडीआर प्रयास केंद्र और मायाबंदर तथा डिगलीपुर में उपमंडलीय न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया। यहां आयोजित लोक अदालतों में विभिन्न न्यायालयों में लंबित बैंकों, बीएसएनएल के मामलों का निपटान हुआ। 77 बैंक वसूली मामलों का निपटारा करते हुए भारी रकम का निपटान हुआ। मौके पर 20,28,000 रुपए की राशि वसूली गई। आपराधिक मामलों का निपटारा करते हुए 30,400 रुपए जुर्माना वसूला गया। जिला विधि सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सचिव अर्कब्रती नियोगी ने द्वीप समूह में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन पर संतुष्टि व्यक्त की। इस बार डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तरफ से लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस लोक अदालत के सफल बनाया। इस लोक अदालत में कुल मिलाकर 6 बेंच का बैठक हुआ, 4 हुआ पोर्ट ब्लेयर में और 2 डिगली। इस पोर्ट ब्लेयर जिले में 77 प्री लिटिगेशन बैंक रिकवरी केस निपटाया गया। बैंक टोटल 2,34,84,000 का मामले के लोक अदालत द्वारा 1,50,95,000 के आसपास समाधान किया गया और ऋण ग्राहकों को 83,89,000 के आसपास छूट दिया गया और 883 क्रिमिनल केस को निपटाया गया, जिसमें 30,000 के आसपास जुर्माना लिया गया। मायाबंदर से 27 प्री लिटिगेशन केस को निपटाया गया। 20,86,300 का समाधान हुआ और 55 क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस निपटाया गया और ₹1,63,000 के आसपास जुर्माना लिया गया। डिगलीपुर में भी 19 प्री लिटिगेशन केस का निपटाया गया, जिसमें 27,55,000 के आसपास समाधान हुआ और 22 क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस का निपटाया है और 60,000 रुपीज जरिमाना लिया गया। इस बार का लोक अदालत अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए बहुत ही सफल साबित हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने ऑल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को अपनाया है। मैं लोगों को अपील करती हूँ कि अगले लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हम लोग मिलकर अगले वाला लोक अदालत के सफल बनाएं। लोक अदालत के बारे में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पाल गोविंद ने दूरदर्शन को जानकारी दी। लोकल नेशनल लोक अदालत है और ये बेनिफिशियल इसलिए है लोगों के लिए, ये जुडिशरी और आम जनता को क्लोज लेके आती है, वेर इन जहाँ पे लोग बैठ करके डिस्कस करके दे सेटल देयर डिस्प्यूट्स। जैसे कि बैंक के लोन हुए, लोन अगर आपका 12 लाख का है, सेटलमेंट होता है 6 लाख में, 7 लाख में, 7.5 लाख में, ये बेनिफिट 4-5 लाख रुपये का आपको देता है। चलान केसेस हुए, आपका बीएसएनएल का वाईफाई का बिल पेंडिंग है, उसके केसेस है। प्री लिटिगेशन हम केस डालते हैं, जैसे कि बैंक में कुछ लोन आपका है, आप सेटल करना चाहते हैं, आप लिख के लोक अदालत में देते हैं, प्री लिटिगेशन में आता है। तो इससे लोगों में एक जागरूकता आती है कि आप कैसे जल्दी डिस्पोज कर सकते हो मैटर को। आपको मालूम होगा अगर लोन का बैंक ने केस डाला हुआ है कोर्ट में, 10 साल चलती है, 10 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको। लोक अदालत में क्या होता है, जिस दिन आप आते हो सेटल होता है, आप एक 6 महीने का टाइम मिलता है, आप उसमें पेमेंट करते हो, जिस दिन से आप सेटल करते हो इंटरेस्ट फ्री हो जाता है आपका। तो ऐसे जैसे आपका एमएसटी केसेस पहले आते तब नहीं आ रहा है, जैसे एक्सीडेंट क्लेम केसेस हुए, छोटे मोटे क्रिमिनल मैटर्स हुए जो आप कंपाउंड कर सकते हो, वो भी कंपाउंड होती है यहाँ पे। देखिए मेरे हिसाब से आप अगर प्री लिटिगेशन मैटर देखोगे, मनी सूट के मैटर्स देखोगे, चालान के मैटर देखोगे,
तो 40% आई कैन से कि जो छोटे मोटे मैटर्स है वो सेटल हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपका कोर्ट का टाइम भी बचता है और बाकी जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं उसमें कोर्ट टाइम दे सकता है आपको। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी नेशनल लोक अदालत आता है, हम पेपर में देते हैं, आप लोगों को नोटिस जाता है, प्लीज़ आइएगा, सेटल कीजिएगा एज अर्ली एज पॉसिबल। आप मैटर को डिस्पोज करके रख सकते हो। दूसरी एक बेनिफिट ये है कि आपको एडवोकेट रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक बर्डन भी आपका कम होता है इसमें। टेरिटोरियल आर्मी के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन के तहत सियाचिन बेस कैंप से लेकर इंदिरा पॉइंट तक ऐतिहासिक साइकिलिंग अभियान का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस जुलाई को सियाचिन के बेस कैंप से साइकिल अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देश के विभिन्न भागों से होकर गुजरते हुए साइकिल अभियान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचा। इस पूरे अभियान के तहत 5000 से अधिक किलोमीटर को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान में 2 अधिकारी, 4 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 26 अन्य रैंकों के कर्मी जुड़े हुए हैं। इस साइकिल अभियान के द्वीप समूह पहुंचने पर 154 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार का कमांडिंग ऑफिसर और अधिकारीगण, जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और बहादुर जवान उनका स्वागत किया। इस सिलसिले में ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन मुख्य अतिथि थे। उनके कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर इस पूरे अभियान के संयोजक 154 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विक्रम ने एयर मार्शल का स्वागत किया। इसके बाद एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने अभियान के साइक्लिस्टों से मिले और उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में मेजर एएस रावत ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी। In the highest traditions of the Indian Armed Forces, the only way a soldier can pay back its organization, there are only 2 currencies. One is blood and one is sweat. And we have done our bit by paying back the organization a homage to 75 years of territorial army by shedding a lot of sweat. My team comprises of members not only of various regiments, but they are also a microcosm of the country. समारोह के मुख्य अतिथि अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने अभियान के प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए अपने विचार व्यक्त किए। This is firstly a homage that the Territorial Army is paying to the nation, to their brave soldiers on the occasion of 75th anniversary. I think it's a unique expedition. I don't think it has ever been attempted in the past to cycle from the base camp of Siachen all the way through the states that as mentioned, varying terrain, all the challenges that the terrain brings with it, and more so considering that the season that they have selected is also the monsoon season. So to overcome all that, to come here and then go right down to the southernmost point of India, which is Indira Point, I'm sure that it will work in a big way to inspire the cadets. इसके बाद मुख्य अतिथि ने झंडी दिखाकर साइकिल अभियान को रवाना किया। इस समारोह में कमान के सभी अंगों के अधिकारी, एनसीसी कैडेट और आमंत्रित मेहमान उपस्थित थे और उन्होंने अभियान दल का उत्साह बढ़ाया। यह अभियान ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन से आरंभ होकर द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों से होते हुए भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट तक जाएगी। यहाँ पर मेजर अभिजीत सिंह ने इस अभियान के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और चुनौतियों भरा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिला। हम लोग ने सियाचिन की पहाड़ियों से स्टार्ट करते हुए तकरीबन ये 40-45 दिन में सफ़र हमने तय किया है। चैलेंजेस से भरा था, बट हमारी टीम जो कि चुनिंदा नुमाइंदे हैं अपने अपने टेरिटोरियल आर्मी की यूनिटों के, काफ़ी फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली रोबस्ट हैं और उन लोगों ने ये चुनौती को पार किया। इस अभियान दल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह टेरिटोरियल आर्मी के 2 जवान भी शामिल हैं। इन्होंने
सियाचिन से लेकर अब तक के इस अभियान के अपने अनुभवों को साझा किया। बहुत ही अच्छा लगा सियाचिन बेस कैंप जाके, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था वहाँ पे। जो सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट पासेस है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वहाँ पे था। साइकिल अभियान यहां से जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय पहुंचा और वहां विद्यार्थियों, कैडेटों, संकाय सदस्य रूबरू हुए। जियानारम से निकलकर राष्ट्रीय स्मारक, सेलुलर जेल, मरीना पार्क के परमवीर चक्र, वार मेमोरियल, सेवा निकेतन डेयरी फार्म होते हुए ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन के 154 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार पहुंचकर संपन्न हुआ। वहां बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर, अधिकारियों, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर्स और बहादुर जवानों ने दल का अभिवादन किया। इस अभियान द्वीप समूह के अन्य स्थानों के दौर पर है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। द्वीप दर्पण में आगे बढ़ते हैं। ओणम का त्योहार कल पूरे देश के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। केरल राज्य में यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। केरल राज्य से संबंध रखने वाले द्वीप समूह के लोगों ने इस उत्सव को खास तरीके से मनाया। लोगों ने घरों में सजावटें की, नए नए वस्त्र पहने और मिठाइयों के बांटने के अलावा रिश्तेदारों और परिजनों को अपने घरों में दावतें दी। हर वर्ष केरल समाजम में केरल समुदाय के लोग इकट्ठे होकर ओणम मनाते हैं। कई नृत्य और गीत संगीत के कार्यक्रम भी होते हैं। श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संरक्षा आराम सुनिश्चित करने और यात्री सुविधा अनुभवों में सुधार करने के लिए प्रीमियम कार किराए की सेवा शुरू की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यहां के हवाई अड्डे पर कार किराए पर लेने की सेवाएं संचालित करने का लाइसेंस दिल्ली स्थित कंपनी वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया है। इस कंपनी ने आज से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी प्रीपेड प्रीमियम टैक्सी सेवा का संचालन शुरू कर दिया है। आज एयरपोर्ट निदेशक देवेंद्र यादव और ट्रैफिक के डीएसपी अजय राय ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट निदेशक ने कहा कि यह शहर की ओर परिवहन सुविधाओं के लिए सुव्यवस्थित और उत्कृष्ट बनाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन की तैयारी के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड कंपनी कैब्स के अनुसार उन्हें विभिन्न हवाई अड्डों पर शहर की ओर से परिवहन के प्रबंधन का समृद्ध अनुभव है। उनके सभी ड्राइवर और कर्मचारी पुलिस द्वारा सत्यापित है और यात्री सुविधाओं के बारे में प्रशिक्षित है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना।
MV जॉली बॉय स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर किया श्री विजयपुरम। मुख्य सचिव ने भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का किया अनावरण। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का हुआ निपटान। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।